پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ترکی کے کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام سلیمان اور چھوٹے بھائی کا نام محمود تھا۔ محمود بیچارہ تھوڑا کم عقل تھا۔ باپ مرا تو دونوں بھائیوں کو جائیداد میں ایک جانوروں کا ریوڑ بھی ملا۔ کچھ عرصہ تو دونوں بھائی مل کر جانور چراتے رہے، لیکن ایک دن محمود کو خیال آیا کہ اگر ہم جانور آپس میں بانٹ لیں تو بڑا فائدہ ہو۔ انہیں باپ کی جو زمین ملی تھی اس میں دو باڑے تھے۔ ایک باڑا تو بالکل نیا تھا اور دوسرا باڑا اس قدر کمزور اور پرانا تھا کہ ہاتھ لگاتے ہی نیچے آ رہے۔ محمود نے سلیمان سے کہا کہ جو جانور خود بخود نئے باڑے میں چلا جائے وہ میرا، اور جو خود بخود پرانے میں چلا جائے وہ تمہارا۔ بڑے بھائی سلیمان نے کہا، بہت اچھا، مجھے تمہاری تجویز پسند ہے، مگر یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو جانور خود بخود نئے باڑے میں جائے وہ میرا اور جو پرانے میں جائے وہ تمہارا۔ چلو یوں ہی صحیح، محمود مان گیا۔ اسی وقت دونوں بھائی کھیت میں گئے اور سارے جانوروں کو ہانک کر وہاں لے آئے جہاں پر باڑے تھے۔ سارے جانور بھیڑ بکریاں گائیں بیل اپنے آپ نئے باڑے میں چلے گئے۔ صرف ایک اندھا مریل بیل جسے راستہ نظر نہیں آتا تھا لڑکتا ہوا پرانے باڑے میں چلا گیا۔ محمود نے کچھ کہا نہ سنا، بلکہ خوشی سے اپنے بیل کو پکڑ کھیت میں چرانے کے لیے لے گیا۔ وہ ہر روز اس مریل بیل کو کھیت میں چرانے کے لیے لے جاتا اور شام ڈھلے ہانک کر اسے باڑے میں بند کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے اندھے بیل کو چرانے کے لیے لے جا رہا تھا کہ بہت زور سے آندھی چلنے لگی۔ آندھی کے چلنے سے ایک بہت پرانا درخت ڈولنے اور چرچرانے لگا۔ خبردار بوڑھے کتے، بھونکو مت، محمود نے درخت کو ڈانٹا، لیکن آندھی چلتی رہی اور درخت اسی طرح جھومتا اور چرچراتا رہا۔ اسے محمود کے ڈانٹنے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں خاموش، محمود نے اور زیادہ غصہ دکھایا اور ہوا کے چلنے سے یوں ہی چرچراتا رہا۔ محمود نے کلہاڑی اٹھائی اور درخت کے تنے پر زور سے ماری۔ لو اب بولو۔ ارے واہ، جس جگہ پر اس نے کلہاڑی ماری تھی درخت میں اسی جگہ سے سونے کی اشرفیوں کا پرنالہ پھوٹ پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر محمود دوڑا دوڑا بڑے بھائی کے پاس گیا اور کہنے لگا، تھوڑی دیر کے لیے مجھے بیل دے دو، میں آج 2 بیلوں سے ہل جوتوں گا۔ ساتھ میں اس نے چند خالی بوریاں بھی مانگی۔ پھر وہ ساری چیزیں لے کر درخت کے پاس پہنچا۔ جب شام ہو گئی اور اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ دولت لے کر گھر آ گیا۔ سلیمان نے دولت کا اتنا بڑا انبار دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے محمود سے کہا، چھوٹے بھائی، اچھا ہو کہ ہم دونوں یہ دولت آپس میں آدھی آدھی تقسیم کر لیں۔ احمق محمود فوراً راضی ہو گیا اور جا کے ہمسائے سے ترازو مانگنے چلا گیا۔ ہمسائے کے پاس ترازو تو تھی اور وہ اسے دے بھی سکتا تھا، مگر اسے فکر ہوئی کہ محمود اس سے کیا تولنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ترازو کے نیچے تھوڑا سا تارکول لگا دیا۔ ہمسائے کا شعبہ درست نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب محمود نے تکڑی واپس کی تو اس کے نیچے ایک سونے کی اشرفی لگی ہوئی تھی۔ پھر کیا، رات ہوتے ہوتے پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ محمود اور سلیمان کو کہیں سے خزانہ ملا ہے۔ سلیمان کو فکر ہوئی۔ اس نے چھوٹے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، سارے گاؤں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم امیر ہو گئے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہم اس خزانے کو کسی محفوظ جگہ پر گاڑ دیں اور خود کچھ عرصے کے لیے کہیں پر چلے جائیں۔ سلیمان نے یہ کہا اور بیلچہ اٹھایا، گھر کے صحن میں ہی گڈھا کھودا اور سارا خزانہ اس میں دفن کر کے چل پڑا۔ چھوٹا بھائی محمود اس کے پیچھے پیچھے یوں لڑک رہا تھا جیسے نیند میں ہو۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سلیمان چلتے چلتے رک گیا اور بولا، چھوٹے بھائی، جلدی جلدی میں گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گیا، جلدی سے جاؤ اور دروازہ بند کر کے آؤ۔ محمود دروازہ بند کرنے کے لیے چلا گیا اور بڑا بھائی سلیمان اسی جگہ پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلیمان آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ہچکولے کھاتا ہوا مشکل سے چل رہا تھا۔ کندھے پر دروازے کے پٹ چوکھٹ سمیت رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سلیمان سے کہا، بڑے بھائی، میں دروازہ ہی اکھیڑ لایا ہوں، نہ دروازہ ہوگا اور نہ کوئی کھولے گا۔ سلیمان کو اس احمق کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے خیال کیا کہ اس احمق کے ساتھ رہنے میں بڑا گھاٹا ہے، کسی طرح سے اس سے پیچھا چھڑوانا چاہیے۔ وہ اپنے بھائی سے پیچھا چھڑوانے کے لیے ترکیبیں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے کچھ گھڑ سوار ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے سوچا کہ دولت کی خبر سن کر کہیں یہ ہمیں لوٹنے تو نہیں آئے ہیں۔ اس نے محمود کو اشارہ کیا اور پاس ہی کھڑے درخت پر دونوں چڑھ گئے۔ محمود نے دروازہ بھی اوپر کھینچ لیا۔ وہ درخت پر چڑھے ہی تھے کہ عین اسی وقت وہ گھڑ سوار اسی درخت کے نیچے آ کر رکے اور گھوڑوں سے نیچے اتر کر رات وہیں پر بسر کرنے کے لیے انتظام کرنے لگے۔ رات کی سیاہی پھیلے جا رہی تھی۔ دونوں بھائیوں نے خیال کیا کہ اگر وہ خاموشی سے بیٹھے رہے تو ان کی جان بچ جائے گی، مگر محمود اتنا بے وقوف تھا کہ نچلا بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔
اس نے दरवाजे को संभालने की बड़ी कोशिश की, मगर अफसोस दरवाज़ा ठां की आवाज़ से नीचे सोए हुए घुड़सवारों के ऊपर जा गिरा। वो घबराकर उठ गए। उन्हें हैरत थी कि यह दरवाज़ा अचानक कहाँ से टपक पड़ा। थोड़ी देर तो वो इधर उधर देखते रहे और फिर अचानक से वहाँ से भाग खड़े हुए। सुलेमान ने अब पक्का इरादा कर लिया कि जैसे भी हो वो अपने भाई का साथ छोड़ दे, इसके साथ गुजारा मुश्किल है। चनाचे उसने फैसला किया कि वो इसी जगह पर अपने भाई को छोड़कर चला जाएगा। और जब सूरज तुलू हुआ तो वो दरख्त से नीचे उतरा और एक तरफ को हो लिया। महमूद अभी तक ऊँग रहा था। जब दिन का उजाला अच्छी तरह से फैल गया तो उसने आंखें खोलकर देखा, सुलेमान वहाँ से गायब था। वो दरख्त से कूदकर नीचे आया और मज़े से सीटी बजाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। दोपहर होने तक वो एक गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचने के बाद उसे ख्याल आया कि खाने का वक्त है और कुछ खा लेना चाहिए, मगर जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी ना थी। क्या खरीदता और क्या खाता। वो गांव में घूमने फिरने लगा। नमाज का वक्त था और लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। वो एक तरफ खड़ा हो गया और हाथ फैलाकर मांगने लगा। रहमदिल लोग कुछ न कुछ उसकी हथेली पर रख जाते। इतने में एक मोटा आदमी उसके करीब आया और पूछने लगा, तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? उन दिनों नौकरों की सख्त ज़रूरत थी। काम करने वाला आदमी बड़ी मुश्किल से हाथ आता था। हाँ जनाब, बड़ी खुशी से, मगर एक शर्त है, महमूद ने मोटे से कहा। कहो कहो, मोटे ने बेसब्री से पूछा। महमूद ने जवाब दिया, जनाब मैं जो कुछ भी करूं, आप मुझसे नाराज़ ना हो, इसी तरह मैं भी आपसे नाराज़ नहीं होऊंगा। मगर याद रहे, अगर आपने शर्त तोड़ी तो मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, और अगर शर्त मैं तोड़ूं तो आप मेरी गर्दन तोड़ देना। ये शर्त थी तो बड़ी अजीब, मगर मोटा रजामंद हो गया और उसे अपने साथ अपने घर ले गया। महमूद ने घर जाकर सोचा कि वो मोटे को तंग करे, तो वो मोटे की मुर्गियों के पीछे भागने लगा। और जब सारी मुर्गियाँ पूरे गाँव में फैल गई तो वो भागा भागा मोटे के पास आया और पूछने लगा, जनाब आप मुझसे नाराज़ तो नहीं? नाराज़? मोटे ने हैरत से कहा, बिल्कुल नहीं, मगर वो आइंदा इस अहमक को किसी भी शरारत का मौका नहीं देना चाहता था। अब इसके बाद महमूद सारा दिन बेकार मोटे के घर में बैठा रहता, ना किसी काम को हाथ लगाता और ना मोटा उसे किसी काम के लिए कहता। ये बात मोटे आदमी की बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। भला ये कैसे हो सकता है कि बीवी एक मोटे ताज़े नौकर को घर में बिठाकर खिलाए। महमूद बेहद पेटू और निकम्मा था। उसे कोई भी काम कहा जाता तो वो बर्तन तोड़ने और चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लग जाता। उसे मुन्ने को खिलाने का बड़ा शौक था, मगर वो किसी न किसी बहाने से उसे छेड़ देता या गिरा देता ताकि वो चीख चीख कर रोने लगे। मोटा उसे निकालता तो वो निकलता ना था, अजब बला बनकर बैठा था। एक दिन बीवी ने मोटे आदमी को समझाया कि खुद ही कहीं पर निकल चलो। उन्होंने उसी रात सामान बांधा, महमूद को सोते हुए छोड़ा और घर से निकल खड़े हुए। मगर महमूद सोया हुआ नहीं था, आंखें बंद किए हुए लेटा था। उसने मियाँ बीवी की एक एक बात सुन ली थी। वो चुपके से उठा और जब मियाँ बीवी सामान बांध रहे थे तो वो भी एक गठड़ी में बंध गया। चलते चलते वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे गांव में पहुँचे। वो इस बात से बड़े खुश थे कि गांव छोड़ना पड़ा, मगर उस पागल से जान छूटी। मगर वो मुसीबत कहाँ टली थी, वो तो गठड़ी में मौजूद थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ तो दोनों सर पकड़कर बैठ गए। आखिर सोचते सोचते उन्हें एक तरतीब सूझी। उन्होंने फैसला किया कि अगली रात वो दरिया के किनारे डेरा डालेंगे। उन्होंने सोने के लिए महमूद का बिस्तर ऐसी जगह पर बिछाया कि सोते हुए जब वो करवट ले तो एक ही बार में दरिया में जा गिरे। मोटे आदमी की बीवी महमूद को बिस्तर के पास ले गई और पानी के पास सोने के फायदे बताने लगी। इस तूतू मैमे में उसका पाँव फिसल गया और वो सर के बल पानी में जा गिरी। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं? महमूद ने मोटे से पूछा। नाराज़ के बच्चे, मोटा गुस्से से आपे में बाहर हो रहा था। तुम नाराज़ होने का पूछते हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपना गांव छोड़ा और तुम्हारी वजह से मेरी बीवी चली गई, और पूछते हो कि नाराज़ तो नहीं हूँ। मैं पूछता हूँ कि तुम जैसे अहमक पर किसे गुस्सा नहीं आएगा? अपना वादा याद कीजिए जनाब। महमूद ने इतना कहा और मोटे को भी पानी में धकेल दिया। उसके बाद उसने हाथ झटक कर जेब में डाले और मज़े से सीटी बजाता हुआ एक तरफ को चल दिया। सड़कों पर घूमते हुए उसे 1 रुपया मिला। उसने फ़ौरन उठा लिया। जब वो आवारा गर्दियाँ करता हुआ एक गांव में पहुंचा तो उसे सख्त भूख लग रही थी। उसने भुने हुए चने खरीद लिए और मज़े से चने चबाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। चलते चलते रास्ते में एक छोटी सी प्यारी सी नदी आई जिस पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। महमूद ने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। जब वो नदी के ऊपर बने हुए पुल से पानी की तरफ झांक रहा था तो चनों का लिफाफा पानी में जा गिरा
पानी की तेज लहरें चनों को बहा ले गई। महमूद की खुशी गम में बदल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे ओ पानी के बच्चे, मेरे चने लिए जाता है, वापस लेकर आ, नहीं तो मुक्के मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा। गुस्से ने उसे पागल कर दिया था। वो काफ़ी देर तक उसी जगह पर खड़ा पानी को गालियां देता और मुक्के दिखाता रहा। अचानक पानी में से एक देव का सर उभरा और उसने गुस्से से गरज कर कहा, ये नदी मेरी है, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरे चने दे दो। महमूद ने कहा, तुम्हारी नदी मेरे चने ले गई है, अब मैं क्या खाऊंगा? देव ने कहा कि अब मैं तुम्हें चनों से कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ देने वाला हूँ, मगर खुदा के लिए शोर मत मचाओ। उसने ये कहा और पानी में डुबकी लगाई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि देव एक हाथ में छोटी सी मेज़ उठाए पानी की सतह पर उभरा और महमूद से बोला, देखो मियाँ। महमूद देखने के लिए आगे झुका तो देव ने उसे बताया, ये छोटी सी मेज़ है, जब भी तुम्हें भूख लगे तो इसे सामने रख कर कहना, मेज साहिबा मुझे भूख लगी है। उसी वक्त तरह तरह के खाने मेज़ पर आ जाएंगे। खा चुको तो कहना, मेज साहिबा मेरा पेट भर गया। देव ने मेज़ महमूद के हवाले की और ख़ुद डुबकी लगाकर पानी में गायब हो गया। महमूद ने सोचा कि क्यों ना खाना खाया जाए। फ़ौरन उसने मेज़ को सामने रखा और कहने लगा, मेज़ साहिबा मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही उसके सामने तरह तरह के खाने आ गए। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस खाने को पहले खाए और किस को बाद में। बस उसने खूब खाया और जब पेट का कोई कोना बाकी ना रहा तो फिर उसने मेज़ से कहा, मेज़ साहिबा अब मेरा पेट भर गया है, शुक्रिया। अभी उसके जुमले पूरे भी नहीं हुए थे कि मेज़ साफ हो गई। उसने मेज़ को कंधे पर उठाया और मज़े मज़े से आगे की तरफ चल पड़ा। वो चलते चलते एक आगे गांव में पहुंचा। गांव पहुंचकर उसने सोचा क्यों ना गांव वालों की आज दावत की जाए। वो एक जगह पर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहने लगा, आज शाम को गांव के चौक में सभी लोगों की दावत है, आना मत भूलिए। शाम को चौक में भीड़ लग गई। लोग हैरत के मारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन लोगों को इस अजनबी अहमक पर हंसी भी आ रही थी जो बगैर किसी वजह के सभी लोगों को खाने की दावत दिए जा रहा था। खाने पीने का कोई इंतजाम भी नजर नहीं आ रहा था। देगे डेगचे तो क्या, आग की एक चिंगारी भी नजर नहीं आ रही थी। लोगों ने एक दूसरे के कान में कहा, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, आओ इसके दो चार झपट लगाएं और इसके मजाक का इसे मज़ा चखाएं। लोग आपस में झगड़ने और बहस करने लगे, लेकिन महमूद मज़े से सामने मेज़ रखकर बैठा रहा। फिर उसने मेज़ से कहा, मेज़ साहिबा मुझे भूख लगी है। अगले ही लम्हे मेज़ पर कई किस्म के खाने आ गए, ऐसे खाने जो देहातियों ने आज से पहले कभी देखे भी ना थे। वो बिस्मिल्लाह पढ़कर खानों पर टूट पड़े। खाते खाते सबके पेट फूल गए। जब सबका पेट भर गया तो महमूद ने उनसे पूछा, सबका पेट भर गया क्या? लोगों ने एक जुबान होकर कहा, हाँ, हमने आज से पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। ये सुनकर महमूद ने मेज़ से कहा, मेज़ साहिबा मेरा पेट भर गया है, शुक्रिया। देखते ही देखते सारे बर्तन मेज़ के ऊपर से गायब हो गए। फिर महमूद ने वो मेज़ अपने कंधे पर रखी और आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे चला गया। हैरत के मारे गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक शख्स ने कहा, काश कि हम हर रोज़ ही इसी तरह के खाने खाया करें। क्यों नहीं खा सकते? दूसरे ने जवाब दिया, बस इस मेज़ की ज़रूरत है, ये अजनबी तो बिल्कुल अहमक है। फिर वो सर जोड़कर बैठे और उन्होंने फैसला किया कि जब ये आदमी सो जाए तो इसकी मेज़ चुरा ली जाए। अगले ही सुबह जब मुर्गे आज़ान दे रहे थे, महमूद की आंख खुल गई। मेज़ को देखा तो वो वहाँ से गायब थी। बहुत परेशान हुआ। थोड़ी देर में भागा उसी नदी के पास गया और पानी में झुककर देखने लगा और लगा गला फाड़ने, हाय मेरे चने वापस दो। पानी में से देव बाहर आया। उसके चेहरे पर गुस्से के असरात थे और वो कहने लगा, क्या शोर मचा रखा है, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? महमूद ने चिल्ला कर कहा, मेरे चने वापस दो, मैं अपने चने वापस लेकर ही रहूँगा। देव ने उसे पहचानते हुए कहा, अच्छा तो तुम वो हो। उस मेज़ का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दी थी? वो तो किसी ने चुरा ली। महमूद ने रोनी शक्ल बनाकर कहा, मुझे मेरे चने वापस दो। देव ने पानी में डुबकी लगाई और थोड़ी देर बाद हाथ में एक छोटी सी चक्की लिए पानी की सतह पर आ गया। लो ये लो, इसके बाद तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहेगी। अगर तुम सीधे हाथ से इसे घुमाओगे तो इसके अंदर से सोना निकलेगा, उल्टे हाथ घुमाओगे तो इसके अंदर से चांदी निकलेगी। अब जाओ और अपनी राह लो और मुझे आराम करने दो। महमूद दोबारा उसी गांव में गया और एक जगह पर बैठकर चक्की पीसने लगा। जब उसने चक्की को सीधी तरफ घुमाया तो उसमें आटे की जगह से सोना निकला और जब उल्टी तरफ को घुमाया तो चांदी। ये सोना चांदी उसके लिए काफ़ी था। ये बेचकर उसने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे
और एक शानदार महल भी बनवाया। अब वो गांव में बड़ी शान से रहने लगा। देहातियों को मालूम हुआ कि अहमक अजनबी फिर से गांव में वापस आ गया है और उसके पास बेशुमार दौलत है। वो चोरी चोरी उस पर नज़र रखने लगे, ये मालूम करने के लिए कि उसकी अमीरी का राज क्या है। जल्द ही उन्हें जादुई चक्की का पता चल गया और ये भी पता चल गया कि चक्की को सीधा चलाओ तो वो सोना उगलती है और उल्टा चलाओ तो वो चांदी। चनाचे एक रात जादुई चक्की भी गायब हो गई। महमूद सुबह सोकर उठा तो चक्की गायब थी। वो सीधा भागता हुआ पुल के जंगले पर पहुंचा और पानी की तरफ झुककर चीखकर बोला, मेरे चने दे दो, मेरे चने दे दो। वो कुछ देर पानी की सतह पर चिल्लाता रहा। आखिर देव का सिर पानी से उभरा। अब क्या चाहिए? उसने गरज कर पूछा। तुम मुझे चैन नहीं लेने दोगे, मैं अपने चने लेकर रहूंगा। उस चक्की का क्या बना जो मैंने तुम्हें दी थी? वो भी चोरी हो गई। महमूद धाड़े मार मार कर रोने लगा। अच्छा ठहरो, ये कहकर देव ने पानी में डुबकी लगाई और एक लम्हे के बाद फिर से पानी के ऊपर आया। उसके हाथ में 2 छड़ियाँ थी। ये लो, ये छड़ियाँ लो। उसने छड़ियाँ महमूद को दी और फिर से पानी में गायब हो गया। महमूद ने छड़ियाँ हाथ में लेकर इधर उधर घुमाई और फिर सोचा, भला ये मेरे किस काम आ सकती हैं। उसने एक हाथ में एक और दूसरे हाथ में दूसरी छड़ी को पकड़ा और गौर से देखने लगा। हाँ ठीक है, उसने अपने आप से कहा। अब मैं उन बदमाशों के पास जाता हूँ जिन्होंने मेरी जादू की मेज़ चुरा ली और मेरी जादुई चक्की भी चुरा ली। मैं इन छड़ियों से उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। महमूद के आने की खबर गांव में फैली तो सारे लोग उसके गिर्द जमा हो गए। सबको बेचैनी थी कि देखें अब ये अहमक क्या जादूगरी दिखाता है। अब के उन्होंने ऐसा जादू देखा कि सारी उम्र ही याद करते रहे। महमूद छड़ियों को हवा में लहराते हुए बोला, ऐ मेरी प्यारी छड़ियों, इनको पीटो। उसका ये कहना था कि छड़ियाँ उसके हाथ से निकलकर तड़ातड़ लोगों के सरों पर पड़ने लगी। लोग चीख रहे थे, रहम रहम। छड़ियों को बस बरसने से काम था। किसी की नाक पर पड़ी तो वो चिल्लाया, हाय मरा। किसी के सर पर पड़ी तो वो चीखा, हाय मेरे अल्लाह। महमूद उन्हें रोता हुआ देखकर हंस रहा था। नदी वाले देव ने अब के क्या उम्दा तोहफा दिया था। सब अपने आप पिट रहे थे और रहम की भीख मांग रहे थे। बदमाशों, महमूद ने लोगों को मुंह चिकड़ाते हुए कहा, मैं तुम पर रहम करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मेरी जादुई मेज़ और मेरी जादू की चक्की वापस करो, वरना पिटते रहो। मार खा खा कर देहातियों का भुरकस निकल चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तुम जो कुछ कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। खुदा के लिए इन छड़ियों को रोक दो। महमूद ने हुक्म दिया, रुक जाओ, और वो रुक गई। वो गिरते पड़ते गए और उसकी मेज़ और चक्की लाकर महमूद के सामने रख दी। देव के तीनों तोहफे लेकर महमूद ने अब सोचा कि इन डाकुओं की बस्ती में नहीं रहना चाहिए, अपने घर चलना चाहिए। वो तोहफे लेकर सुलेमान के पास चला गया। वो भी घूम घाम कर घर वापस आ गया था। जादू की मेज़, जादू की चक्की और जादू की छड़ियों के होते हुए महमूद को किस चीज़ की ज़रूरत थी। उसने वो सारी दौलत जो उसे दरख्त के तने में से मिली थी वो भाई को दे दी। इस तरह से दोनों भाई अमीर हो गए। महमूद के पास अभी एक चीज़ की कमी थी और वो थी एक अच्छी और समझदार बीवी जो उसे हर बात पर समझाती रहे और उसे ऊंच नीच के कामों से रोकती रहे। आखिर सुलेमान ने उसके लिए ऐसी एक अच्छी लड़की तलाश कर ही ली। जब वो महमूद के लिए लड़की तलाश कर रहा था तो उसे भी अपने लिए एक अच्छी बीवी मिल ही गई। दोनों भाइयों की शादियां हो गई और दोनों भाई खुशी खुशी अपने घरों में जिंदगियां गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।